Does anybody has to say something or share something? Any difference in feelings in the last few days? Becoming more tolerant, I think, all of us. Like today something happened which hurt me, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था. Then I immediately resigned कि okay, it happens for a purpose. जिसकी गलती थी, जो उसका मेरे को लगा गलती थी, मेरे तरफ से I forgive, cut, I cut it away, cut the thoughts away. So I think that difference I feel immediately. आज होते ही हमेशा पहले होता था, 2 दिन तो खराब लगता, फिर realize होता, अरे यार जाने दो, क्यों अपने आप को तकलीफ दूं. But today it was almost immediate. So I hope you all can feel that sort of a difference in your daily lives. You're way more advanced than us, so it'll happen. No, but it's still happening. I'm not saying yesterday it would have happened. Maybe it happened today. I'm feeling lighter. Yes, it has to be handled. That does not mean we will not handle the situation. We will still handle it. Not ki jane do, everything jane do, so we'll be getting people rolling over us the whole day. But now handling it is like upar se handle karna hai. Andar se, at least my emotions are in control. Handle to karna hai usko. Jo hua, I can't let it go. It has to be handled. But andar se that not ki dekh lungi, aise kyun kiya, that is no longer there. That difference is there. Yesterday, Vivek ji couldn't join. He was having some server issues. Hopefully, Is he there? Yeah, he'll be there. I just talked. He'll be there. Maybe slightly late, but he'll be there. Hi, Bhabhi. Hi, Didi. Hello. Yeah, it is the middle So of his work. everyone having very beautiful eyes today. I think that was जो हमारे WhatsApp group में है. We were given a task कि please आज अपनी आँखों की बहुत बड़ाई करो. Appreciate your eyes. So that was the task on the group while you were sleeping, Yogini. That was so. I haven't read the messages yet. So I can see many beautiful eyes today. So should we start? Yeah. Okay, so let's start with the tapping. Yes, we tap. We are not doing EFT for all those who have done EFT. We are just tapping our body. Just tap, 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 tap. Tap, tap the back of your hands. We are just activating our body. Maybe जो कुछ फंसा हुआ है और front, जो कुछ थोड़ी सी भावनाएं हैं जो निकली नहीं है उसको टैप करके बाहर कर रहे हैं. Just imagine everything that you were not able to throw out, it is all going out. Tap, 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 tap. Everything going out. कुछ फंसा है अंदर तो निकल जाए. I don't want you. I don't want you in my body anymore. Any negativity, no. I am happy. I am totally happy. I am a peaceful soul. I choose to be happy. Yes, that's the thought going in. I'm tapping it in. I choose to be happy. Yes. Tap, tap. Under your eyes. While we are at it, how can we not be grateful for our body? Yes, let's be grateful. For every part that you are tapping, let's be grateful. Even this chin, isko to kabhi yaad hi nahi karte hain. Just giving the shape to our face. Let's be grateful. Breast bones out here. Such pretty shape they give to our body. Thank you. And then we come to our heart, a beautiful heart. Physically, it is keeping us alive.
beating every moment, filtering all the blood. And it is letting us feel. Tap, 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 sweetheart, I love you. Tap, tap. Tap your tummies, thank your digestive system. Thank all the food that is inside, that is giving you energy, that is filling you with power, physical power. Come down to your thighs, to your knees. Knees are so important. Thank them now. Thank them so that they continue working. Come down to your calf muscles. Thank you, thank you. Tap them. Any negative energy is there to let them all go out. The bottom of your feet. That's the soles of your feet, you know, you can push out all negative energy from there. Right foot. Yes, just sit up now. Feeling lighter, definitely. Feeling much more lighter. Thank you, body. Thank you. Let's do a short invocation. Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, सब परम पिता परमेश्वर, सभी दिव्य शक्तियां, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमने इन कुछ दिनों में काफी कुछ सीखा है, अपने आप को, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल में करें बाय फॉरगिवनेस। ये सब आपकी देन है, उसे हम स्वीकारते हैं। आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम इन जो भी लेसन सीखे हैं वो हमें पूरे याद रहे। हर जो हमारे जीवन में जरूरी है, जो नई बातें हम अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनको आप हमारी मदद करें कि हम याद रखें और उसको अप्लाई करें। हमें इस सेशन में लाने के लिए शुक्रिया। हमें इस काबिल समझा आप कि हम इस सेशन के लिए तैयार है, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। आज के सेशन में जो हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया। हम वो सब समझ पाए, जिस भावना से कही जा रही है उसी भावना से हम उसे समझें, इसमें आप हमारी मदद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Today we do forgiveness for all our other relationships. जो आज तक हमने अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने सारे पूर्वज के लिए किया। कहीं ना कहीं हम when it comes to forgiveness, don't we relate it more to other people? Other people मतलब पेरेंट्स और अपने खुद के लिए, ancestors के लिए कभी ध्यान नहीं आता। अदर पीपल्स में सबसे हमारा स्पाउस आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, हमारे इन-लॉज आ जाते हैं, हमारे जो स्टाफ है घर पे काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, न जाने कौन कौन, एट टाइम्स इवन स्ट्रेंजर्स, they hurt us and just go, and हम बहुत दुखी हो जाते हैं। Just now भाभी was saying ना, एक compassion आना शुरू हो गया है। I hope कि आप सबके अंदर वो forgiveness वाला compassion की, वो nobody is perfect, हमारे से भी गलती होती है। Even I am not perfect, I make mistakes, so anybody can err. To err is human, that's what we say ना। तो हम पे वो compassion तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत आ गई है। अभी तक वो मन में बैठ गया है, ये बात अभी तक बैठ जानी चाहिए कि we should be compassionate about everybody around us. That again doesn't mean that सबको जाने दें, काम कीजिए उस क्षेत्र में जहां पर भी प्रॉब्लम है। We need to take an action, but from the bottom of hearts, from our दिल से उनको माफ करते जाना ही सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात है for we ourselves. एंड सबसे ज्यादा हमें इन्हीं से दुख मिलता है, हमारे रिलेशन से, हमारे मतलब हमारी जो सबसे करीबी रिलेशंस होती हैं उनसे ही हमें दुख, दर्द, कभी बहुत शिकायत,
बहुत कभी नुकसान, कभी तिरस्कार, न जाने हमें क्या क्या मिलता है और हम इसको पकड़े रहते हैं। अगर हम खुद को मतलब या तो अपने दिमाग में बार बार ये थॉट्स ला के उस जलते हुए कोयले को सुलगाते रहते हैं, उसको और हवा देते रहते हैं। एंड एवरी टाइम डोंट यू नोटिस कि आपको अगर कोई दर्द वाली बात याद आती है या आप किसी से बात करते हो, उसका जिक्र करते हो, वो घाव फिर से हरा हो जाता है। यू फील दैट पेन अगेन। सो इट इज लाइक दैट, यू नो, हम वो बर्निंग कोल को और ज्यादा सुलगा रहे हैं और ज्यादा उसको हवा दे रहे हैं, ना कि बुझाने की वजह। आप जब बात करते हो, डू यू फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम? आपको उस सिचुएशन में उस दर्द को मिटा, क्या वो दर्द मिटा आपके बातचीत करने से, किसी से करने से? अगर कुछ मदद कर पा रहा है तब तो आप जरूर शेयर कीजिए एंड गेट अ सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ। बट अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ उसको कुरेदने का? बोलता है ना, वो नासूर बन जाता है वो जख्म, अगर आप बार बार एक जख्म को कुरेदते रहते हैं तो व्हाट इज द पॉइंट? एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिससे हम नाराज होते हैं, जिससे हमारे पास हमको इतना दर्द मिला है, हमें इतनी चोट पहुंची है, वो सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता है। दैट पर्सन इज सो अनअवेयर कि हमारे मन में कितना कुछ चल रहा है, हमारे जीवन में उनकी वजह से कितनी उथल पुथल है। दैट पर्सन मे नॉट हैव द स्लाइटेस्ट क्लू अबाउट इट। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना वापस देने की जो भावना है ना, रिवेंज, इसको तो मैं दिखा दूंगा टाइप्स वाला, आई मीन आई नीड टू गिव बैक, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, कभी ना कभी तो आई विल शो हर, कभी ना कभी। और ये इतना समय हम इसको देते हैं ना रिवेंज के बारे में सोचने के लिए, या कि याद रखने के लिए उसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे भी वापस देना है, टू कीप दैट ओनली इन आवर माइंड। सोचिए हम कितना अपना स्टोरेज पावर उसको देते हैं, कितनी अपनी दिमाग की शक्ति उसको देते हैं। एंड इस दौरान जब हम ये याद रखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं कि किससे रिवेंज लेना है, अगर हम अपना ग्रैटिट्यूड बैलेंस बढ़ाने में लगा दें, वो समय हम अपने पॉजिटिविटी में लगा दें, वो समय हम अपना कुछ अच्छा करने में, जो हमें हैप्पीनेस दे, वो करने में लगाए, वो वोंट वी बी मोर हैप्पियर देन थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन? ये तो वो वैसी वाली बात है ना कि हमने अपने रिमोट की चाबी उनके हाथ में दे दी, वो हमको जैसा नचाएंगे हम वैसा नाच रहे, बंदर बन गए हम एक्चुअली उनके हाथ में, वी आर देयर पपेट्स। तो व्हाई टू गिव द रिमोट कंट्रोल इन एनीबॉडीज हैंड? एंड इस दुनिया में, वो पहले भी हमने ये बात करी है ना, कि इस दुनिया में अगर हम अकेले होते तो क्या कर लेते। आज हम पहचाने जाते हैं, मैं आज किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, आप किसी के दादा हो, पापा हो, चाचा हो, हम बुआ हैं, गॉड नोज हाउ मेनी रिलेशनशिप्स, हाउ मेनी रोल्स वी प्ले इन आवर लाइफ, एंड ईच रोल गिव्स अस अ मीनिंग, हमारे लाइफ को एक वो नया एंगल देता है। एक छोटी सी भतीजी बुआ 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 करके आके लिपट जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। What happiness that relationship gives you. That is how there are so many relationships that we have in our lives. लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि हम अपने बच्चों की गलतियों को तो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, शायद किसी और के सामने हम डिफेंड भी करते हैं कि ये तो इसने किया ही नहीं, बिकॉज वी हैव अनकंडीशनल लव फॉर द चिल्ड्रन। उनके प्रति हमारे मन में इतना प्रेम होता है कि हम हर कुछ को माफ करने के लिए तैयार हैं। कैन वी गेट दिस लव इन ऑल आवर रिलेशनशिप, टू थिंक द अदर पर्सन वो एक अलग सोल है, उसकी एक अलग जर्नी है, उनका एक अलग रोल है, वो उस रोल को प्ले कर रहे हैं। आज शायद वो मैसेज इतना एप्ट आया जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, इट वाज एज दो इट केम राइट पॉप्ड अप इन फ्रंट ऑफ मी, कि डिफरेंट पीपल हमारी लाइफ में हमको जो चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जो हमें बेहतर बनाने के लिए, लेसन्स देने के लिए, प्यार देने के लिए, कोई लेसन देता है, कोई प्यार देता है, कोई इज्जत देता है, कोई कहीं अपनी अपनी रोल प्ले करने में जो चाहिए वो भगवान हमें भेजते हैं, ना कि जो जो लोग हमें चाहिए। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि हमारे रिलेशनशिप भी हमें वही मिलते हैं जो हमारी जर्नी में हम आगे जाने, हमारी जर्नी इम्पोर्टेंट है। वी चूज दोज रिलेशनशिप, वी चूज दोज लेसन्स, वो सिर्फ एक मैसेंजर होते हैं हमारे तक उस लेसन को पहुंचाने के लिए, दे आर नॉट द कल्प्रिट्स।
वो हम चूज कर रहे होते हैं सीखने के लिए. दैट इज व्हाई दे कम इन आवर लाइफ. इम्पॉर्टेंट है कि अभी जैसे सरिता भाभी ने पॉइंट आउट किया था ना कि वो गलती को नजरअंदाज करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको किसी ने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई हो, आप बहुत ज्यादा अब्यूजिव रिलेशन में आप रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप वो रिलेशनशिप में फॉरगिविंग, जस्ट बिकॉज आप फॉरगिविंग हो, यू आर ऑल गिविंग, डजंट मीन आप फॉरगिव करते जाओ. there you need to take a stand, there you need to understand कि आपको एक choice लेना पड़ेगा whether you want to keep staying in that relationship, और अगर आपने choose किया उस relationship में continue करने के लिए, दिल से माफी तो आपको, चाहे आप उस relationship में रहो चाहे आप आगे बढ़ो, दिल से माफी तो आपको देनी पड़ेगी, दिल से आपको उनको माफ करना पड़ेगा. if you choose to move forward तो भी माफ करना पड़ेगा. और अगर आपको उस रिलेशनशिप में रहना है तो वो चॉइस आपके पास है कि आप अपना स्पेस कैसे क्रिएट करें, अपनी इज्जत कैसे क्रिएट करें. आप यू कैन नॉट बी लाइक अ डोर मैट कि आओ कोई भी मुझे मार पहुंच के चले जाओ. यू कैन नॉट बी लाइक दैट. आई एम नॉट म्यूट. Everybody can hear me? Yeah, you're fine. We can hear you well and good. Okay. So it is a very, ये हम अब तक तो इतनी बार हमने ये सेशंस में ये सुना ना, जो कुछ भी होता है वो हमारी वजह से होता है, कहीं ना कहीं हमने ही उसके बीज बोए हैं. We are responsible for anything and everything that is happening with us. चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो रहा हो, चाहे जिंदगी के किसी भी एंड पे हो रहा हो. So what different do we start doing now? हमको अलग यही करना है कि हमें फॉरगिवनेस करके उस सीड को ही खत्म करना है, उस दुख के, उस दर्द के, उस चोट के सीड को ही खत्म करना है. एंड वी नीड टू सो अनदर सीड्स ऑफ फॉरगिवनेस, ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑफ लव एंड पीस, ताकि आगे जाके जीवन में हमारे जो इंस्टेंसेस आए, हमारे जो सर्कमस्टांसेस आए, वो और लविंग हो, हमारे अनुकूल हो. इट्स लाइक कई बार ये क्वेश्चन आता है ना कि वो पर्सन इतना ज्यादा बदमाश है, वो मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं फॉरगिव कैसे करूं? Do we all get this type of a question? Do we always feel कि how can I forgive that person? वो इतना ज्यादा मेरे साथ खराब किया हुआ है, लेकिन उनके कर्म है, वो समझेंगे. those are their seeds. ये बीड़ा हमें अपने हाथ में नहीं लेना है कि मुझे उसको लेसन सिखाना है. आवर कर्मा, आवर सीड्स हमारे हाथ में है, हमें अपने सीड्स अच्छे बनाने हैं ताकि हमारा फ्यूचर बेटर होए. Once upon a time, as Sarita Bhavi was just mentioning before our session ना, कि मैं भी बहुत सेंसिटिव थी, कोई भी बात का इतनी ऐसे चुटकियों में बुरा लग जाता था, एंड कई दिन तो दिनों तक उसको सोचती रहती थी, महीनों तक, सालों तक. Now coming into these learnings, अब समझ में आया कि टू लेट गो, छोड़ देना कितना इम्पोर्टेंट है खुद के लिए, खुद के शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए. इट्स नॉट दैट द अदर पर्सन डिजर्व्स इट और नॉट, वो माफी के हकदार हैं कि नहीं है, वो हमको सोचना भी नहीं है. इट इज फॉर आवर ओन सेल्फिश रीजंस दैट वी नीड टू forgive the other person. मेरे बोल में आपका इट इज वेरी इजीली सेड देन डन. कोई सिचुएशन में आप बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में अगर किसी के बड़ा धोखा हुआ, किसी ने बहुत आपके पैसे चुरा लिए, तो आप कैसे माफ करोगे? वो आपके जीवन की जमा पूंजी थी, आप कैसे माफ करोगे उसको, कैसे आगे बढ़ोगे? बट व्हाट चॉइस डू वी हैव अदर देन टू लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन एंड मूव ऑन? अगर हम कुंठित हैं, अभी दर्द में हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या हमें वो पैसा वापस मिल रहा है? क्या हमें उस रिलेशनशिप में इज्जत मिल रही है? क्या हमारा भला हो रहा है? दैट इज व्हाई फॉरगिवनेस इज सो इम्पोर्टेंट. एंड आज हम कोशिश करते हैं, जो वो सुलगता हुआ अंगारा जो हमने पकड़ रखा है ना, उसको दूसरों पे फेंकने की बजाय हम उस पे पानी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसको डाउज करते हैं, ताकि हमारा जीवन और बहुत ज्यादा खुशहाल हो. So should we start our meditation?
I request everybody to put their phones on silent mode so that they are not disturbed during the meditation. Sharing the music. Yeah, I am. This way. Close your eye. गहरी सांस लीजिए. Deep inhalation and a long relaxed exhalation. बनाओगे, काफी गहरी सांस लीजिए. Concentrate on the tip of your nose. सांस लेते वक्त ठंडी हवा अंदर जा रही है. पूरे नाक से होते हुए पेट तक जा रही है. एब्डोमेन तक उसको महसूस कीजिए. एंड जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, गर्म हवा बाहर आ रही है. Repeat this cycle for 2-3 times. Breathe in, breathe out. Be aware of this process. Affirm that this breath is giving us complete health. Right now, are you focusing on your breath or you have wandered somewhere? आपके thoughts आने लगे हैं. आप कुछ सोचने लगे. अपने thoughts को पकड़िए. देखिए ये positive है, not so good thoughts. जो भी आपके विचार आपको पसंद नहीं आ रहे, उनको forcefully बाहर फेंक दीजिए. Let all good thoughts stay with you. Think of a happy moment in your life. जिसमें आपको बहुत प्यार महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई. Relive that moment again. उस moment को फिर से जी. That happened. Hi. By nature, I am a loving and happy being. मैं एक शांति प्रिय, बहुत ही प्यारी आत्मा हूँ. There is peace, harmony and love in my nature. हम सब इंसान हैं, हम सबकी गलतियाँ होती हैं. Shalini, we can't hear you completely. I'm stopping your sounds here. I'll do the sound. Maybe that we're not able to hear you totally. Okay. My volume is low. You have shared the music? Yeah, you continue now. Concentrate on your breath again. I am a happy soul. I am a peaceful soul. We all are humans. हम सब से गलतियां होती हैं.
मेरे हर संबंध के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। उनसे ही मेरी पहचान है। कोई मुझे बेटी कहते हैं तो कोई माँ, चाचा चाची, ताया ताई, बहन भाई, सहेली, पति पत्नी या फिर बॉस। मैं हर एक रोल में, हर एक संबंध के लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे इन सब संबंधों से कई बार काफी दुख भी मिलता है, गुस्सा भी आता है। मेरे भाई बहन के साथ मैंने ईर्ष्या की। वो पढ़ाई में मेरे से बेहतर थे। उनके घर में उनकी ज्यादा बड़ाई होती थी। वो भी मुझे नीचा दिखाते थे। धीरे धीरे मेरे मन में गांठ बनती गई, जो आज तक हमारे संबंधों पे भारी है। हम एक दूसरे से अच्छे से बात तक नहीं करते। कभी कभी भाई भाई एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। आज मुझे समझ है कि हम सब अलग अलग आत्मा हैं। हमारी सबकी जर्नी अलग है, लेसन्स अलग हैं। I cannot compare myself with anybody. आप अपने सामने अपने भाई बहनों को इमेजिन कीजिए। होल्ड देयर हैंड्स, गले लगा लीजिए, दिल से उनको माफ कीजिए। I am letting go of all the differences between us. प्लीज मुझे भी माफ कीजिएगा और सारी बातों को जाने दीजिएगा। आई एम सॉरी। मेरे प्यारे भाई हो, बहन हो, तुम्हारी वजह से हमारे बचपन में हमने इतना मजा किया। तुमने कई बार मेरे लिए दूसरों से लड़ाई की, मुझे बचाया पापा मम्मी से। और तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ जब मैं गई, तुम एज अ बॉडीगार्ड भेजे गए थे। तुम ना चाहते हुए भी आए थे। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। आई लव यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई लव यू भाई, आई लव यू बहन। हमारे सबसे क्लोज रिलेशनशिप में ही हमारे कार्मिक लेन देन छुपे रहते हैं। हमने अपने स्पाउस से हमेशा ही कंप्लेंट्स रहती है। जानबूझकर या अनजाने में हम अपने स्पाउस को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी दर्द दे देते हैं। ऐसी चोट दे देते हैं जिससे उनका वजूद ही हिल जाता है। इस दर्द को भुला पाना बहुत मुश्किल है, परंतु अपनी शांति, अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए आज मैं आपको आपकी सारी गलतियों के लिए, ज्यादतियों के लिए क्षमा करती हूँ। आपने मेरा कभी आभार नहीं माना, आदर नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहे। आज मैं वो सारा दर्द को छोड़ रही हूँ। Not because you deserve forgiveness, but because I deserve peace.
I let go. I let go of all the hurt. मुझसे भी गलतियां हुई हैं। मैंने भी आपके माता पिता के लिए कई बार अपशब्द कहे हैं। मैंने भी आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आप भी उन सब बातों को जाने दें और मुझे माफ करें। प्लीज फॉरगिव मी। आप अपने अपने स्पाउस का नाम लीजिएगा जब मैं अपने स्पाउस का नाम लूंगी। I love you as you are not. I respect you, Satish, as you are not. I accept you, Satish, as you are not. I'm so grateful to you, as you are not. हमारे उन हसीन पलों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सारी यादों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। I am grateful to you for whatever you did for me till now. Thank you, thank you, thank you, and I love you. I know I haven't appreciated you enough, haven't acknowledged you enough. You have been compassionate with me, and I love you for that. I love you. आज मैं अपने बच्चों को क्षमा करती हूँ उन सारे दुखदायी व्यवहार के लिए। मुझे कुछ आता नहीं ऐसा महसूस कराने के लिए। कठोर शब्द कभी ना कभी मेरे साथ बोलने के लिए। I forgive. I let go of all the pain and hurt that I have caused. मैं भी क्षमा चाहती हूँ मेरी सारी गलतियों के लिए जो मैंने कहीं ना कहीं किए होंगे उनको बड़ा करती वक्त, knowingly, unknowingly. At times I may have been too harsh on them. उनकी गलतियां भी नहीं रही होंगी इतनी ज्यादा, लेकिन मैं बहुत कठोर थी। शायद मुझे डिसिप्लिन के नाम पे मैं बहुत कठोर रही थी और वो सहम जाते थे। आई एम सॉरी बेटा। आई एम सॉरी फॉर नॉट लविंग यू इनफ। आई एम सॉरी फॉर नॉट अप्रिशिएटिंग यू इनफ। आई एम सॉरी फॉर नॉट मोटिवेटिंग यू इनफ। And at the time when you needed it the most, I'm sorry. Please forgive me. The fact that because of you, I am a mother today. I'm so grateful to you. I love you. अपने अपने बच्चों को बहुत प्यार से झप्पी दीजिए. Give them a tight hug. I accept you, my bachcha, as you are. I love you as you are. I'm for being in my life. I love you. घर पे और भी बहुत मेंबर्स होते हैं हमारी फैमिली में, रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, और हमारी कभी ना कभी किसी से अनबन हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। उन्होंने हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों न किया हो, आज हम कोशिश करते हैं उन्हें माफ करने का, इस फीलिंग के साथ कि वो सिर्फ मैसेंजर्स हैं हमें लेसन सिखाने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। Please forgive me as well. हमारे बीच शांति बनी रहे, हमारे बीच प्यार बना रहे।
विजुलाइज कीजिए कि आप सब हंस रहे हैं, आप सबके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और अगर वो रिलेशनशिप आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उस बंदे को आपसे दूर हंसता हुआ जाते देखिए, इन पीस, इन हैप्पीनेस। लेट गो ऑफ द पर्सन। बचपन में जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझसे ज्यादा अटेंशन किसी और को दे देते थे तो मैं बहुत गुस्सा होती थी, कभी कभी तो रोना भी आता था। आज भी अगर मेरे अच्छे फ्रेंड्स मेरा साथ नहीं देते तो मैं दुखी हो जाती हूँ। कोई मेरे पीठ पीछे चुगली करे, ये मुझे पसंद नहीं। कहीं ना कहीं मैंने भी उनके पीठ पीछे बात की होगी। मैं उन सब लोगों को दिल से माफ करती हूँ और उनसे माफी भी चाहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। जाने अनजाने में की गई मैं सारी बातों को जाने देती हूँ। I treasure your friendship. I love you. Thank you. Thank you to be there in my life. Thank you. We need to forgive all those people who in some way have cheated us, पैसों से या रिलेशनशिप में या फिर हमारा क्रेडिट चुराकर। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद आ रहा हो या याद न भी आ रहा हो, आज हम उन सबको उनकी चोरी के लिए माफ करते हैं। जाने अनजाने में मैंने भी किसी को नुकसान पहुंचाया होगा, वे भी मुझे माफ करें और बीती बातों को जाने दें। God speak, be with them and be with me. Let us forgive all our employers या employees, staffs at home, office और बहुत सारे रिलेशनशिप में अगर कहीं किसी ने हमारे साथ मिसबिहेवियर किया, ऊंची आवाज में हमसे बात करी, बिना बात के हमें नुकसान पहुंचाया, शायद हमने भी अपने स्टाफ से ऊंची आवाज में बात करी, कहीं ना कहीं अगर उनकी गलती नहीं भी थी तो भी हमने उन्हें डांटा। Let us speak forgiveness and give forgiveness. मैं उन सब को माफ करती हूँ उनके मिसबिहेवियर के लिए, एंड माफी चाहती हूँ मेरे मिसबिहेवियर के लिए। मेरी तरफ से कोई भी त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर किसी का चेहरा आपके सामने आता है, bless the person with love, with peace, with lots of happiness. भगवान उनकी उन्नति करे। हम सब के बीच में बहुत प्यार और शांति बनी रहे। ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस शांति के लिए। Thank you for spreading love, peace and joy. Thank you God. Thank you. Thank you. Thank you. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे हर एक रिलेशनशिप के लिए जो मुझे पूरा बनाती हैं। I am so grateful. Thank you to each and every person. Thank you. Thank you. Thank you. Om Shanti 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 Om.
whenever you are comfortable. Please open your eyes with a big, big smile. Thank you so much. Whoever attending the session, thank you so much. थैंक यू दी, वेरी वेरी बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, Dee. Nice meditation. थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू वेरी Thank you. बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है. यस. थैंक यू सो मच मैम. इन 4 दिनों में आपने बहुत रुलाया है मैम. Shalini, please forgive us, all of you. आज स्माइल आई है. मुझे ऐसा लगा कि ये 4 दिन का जो प्रोसेस है, क्लेंसिंग प्रोसेस हुआ, हॉलो एंड एम्प्टी होते जा रहे हैं, खाली 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 होते जा रहे हैं. सारा जो बर्डन है, बोझ है, वो सब कुछ निकलते जा रहा है. दिस इज व्हाट आई कुड फील टुडे. आज बोलने का दिल भी नहीं कर रहा. आज मैम थैंक एक यू और बात सो ऐसी हुई मच. कि जिन से मेरे मन में थी कि मैं माफी मांगू या क्या, हर एक रिलेशन आपने सब लिए. सब मतलब सब जो दोस्त थे बचपन से लेके अभी तक, जो कभी सोचा ही नहीं कि उनसे माफी मांगे, लेकिन आज वो भी याद आया बचपन से लेके अभी तक के. भाई से मेरा कुछ दिन पहले कुछ हो गया, आपने उनसे भी माफी मंगवा ली. मतलब आज सब कुछ जो चाहिए था ना, वो सब आपने करवा दिया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सारी आप लोगों की बहुत. एनर्जीज होती है. आई मीन इट इज व्हाट द ग्रुप वांट्स, वो ईश्वर अपने आप करवा देता है. lot of best wishes and blessings to all of you. Thank you so much. Why आप खालीपन का बात कर रहे हैं ना, just make हाँ. sure replace all that खालीपन with feel divine energy and gratitude. Okay. Yes, just कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी बाहर गई है, उसकी जगह ऑल डिवाइन लाइट मेरे अंदर आ रही है. एंड आई एम फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड उन्हीं लोगों के लिए जिनको मैंने माफ किया है, उनके लिए आई एम सो ग्रेटफुल. वो लाइफ में आके इतने लेसन सिखा के गए. ठीक है. Should I write it in the notebook or just Whatever. do the visualization process? Visualization is good, but if you want to write, you can even write. Gratitude तो कैसे भी करो, it is never enough. आंसू आ ही रहे हैं, मतलब खुशी के आंसू आज महसूस हो रहे कि आई एम फीलिंग एक अध्याय खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा है. आप लोग की सिंसियरिटी है कि we are able to give so This group has got energy level beyond expression, which can't be expressed. Thank you so much, all of you. And if we can repeat these meditations, so Mhm. मन करे तो आप वापस लो and repeat whichever episodes you want to. बहुत फर्क पड़ता है. The reminder is always very nice. So where do we need to go to repeat this meditation? आप अपना नंबर डाल दीजिए. आप प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए. I will send you the links. I'll just now put it now. Yeah. And you can join our page on Facebook as well.
Okay. I will send you the link for that too. Yeah. Yeah, मैम आज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। session है। श्वेता है। हाँ श्वेता जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैम बोल रही हूँ कि थैंक यू सो मच। जब से मैंने ये क्लासेस की मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा फुल पेज मेरे हस्बैंड के लिए ही जाएगा। लाइक बेसिकली स्टार्ट होता है उनसे और 10 पॉइंट्स मतलब कब तक खत्म होता है। लाइक आई एम थैंकिंग हिम ओनली। एंड वैसे अंदर अंदर कितनी चीजों के लिए आई वाज लाइक ये नहीं करते, ये नहीं सुनते। ही वाज लाइक दिस। एक पर अब लगता है कि नहीं यार मुझ में ही कुछ था। लाइक ही मतलब ग्रेटिट्यूड ही उनसे ही स्टार्ट होता है मैम। टच वुड मतलब हमारा ये रियलाइज नजरिया कराने बदल के लिए कि आई एम सो सॉरी फॉर सो मेनी डेज कि मैं उन पे क्रिप कर रही थी। एंड लाइक टच वुड सो थैंकफुल टू यू मैम। एंड आई कैन सी द नोटिस द डिफरेंस इन हिम। लाइक जब से मैंने वो थैंकफुलनेस दिखाई है तो वो और सिंसियर होते जा रहे हैं। मतलब आई कांट थिंक आल्सो लाइक touch wood ma'am. Thank you so much. Thank you so much all of you. Thank you so much. I also your sharing is so superb. It's so powerful. देखिए हमने नजरिया चेंज किया and everything is changed. नहीं I मैम mean, मुझे कुछ में पता ही नहीं था। लाइक फर्स्ट डे स्टार्ट करती हूँ तो लाइक एवरीथिंग मुझे जो सर्वेंट की फैसिलिटी मिल रही है। मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे स्टाफ उन्होंने दे रखे हैं। द शॉप वेयर आई सिट इज हिज। लाइक मुझे रूम इतना अच्छा मिला है तो एसी दे रखा है तो इलेक्ट्रिसिटी है। आई हैव माय पर्सनल फ्रिज। तो मतलब टच वुड द लिस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन। और पहले ये रियलाइज ही नहीं होता था कि उनके बिना माय लाइफ इज सो लाइक फ्रूटफुल फ्रूटलेस। लाइक मुझे लगता था ये नहीं करते वो नहीं करते। अब फील ही नहीं होता। अब ऐसे लगता है बहुत कुछ शायद मैं भी नहीं करती। थैंक यू सो मच। लाइक सीरियसली ऑसम। lovely. Lovely. I also liked nice the sharing, way Shweta you ji. took this thing Ho'oponopono in between. So now अगर वो करना रहा कभी किसी के लिए तो वैसे करके भी बोल के सॉरी बोल सकते हैं ना मैम। Yes, you can. Ho'oponopono is a kind of cleansing technique only. Okay. हो'oponopono में वो और होता है ना, we take responsibility. वो फीलिंग से करते हैं कि जो भी हो रहा है I take responsibility for that. And then prayer वही है जो अपने forgiveness में करते हैं। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. अगर आपने नोटिस किया चारों दिन सेशंस में हमने ये चारों बार बहुत बार की I am sorry, please forgive me. अनुष्का, thank you so much. Yes, आज last day है इस सेशन का. Of course, जब जिम्मा लिया है तो we will come back with what and where and when as universe commands. मैम मेरी भी शेयरिंग है कि Yes. ये 4 o'clock है ना, ये लास्ट 4 डेज से मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मेरे कुछ गेस्ट सिलीगुड़ी से आ रहे थे शॉपिंग के लिए, लेकिन 21st को उनका मैसेज आया कि दे आर नॉट कमिंग, दे विल कम ऑन 12th, 13th एंड 14th ऑफ अक्टूबर। तो मेरा ये चारों सेशन है ना जूम मतलब अटेंड हो पाया, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स को। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जूम में ज्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ, मैं ज्यादा एनर्जी गेन करती हूँ। तो मुझे रिकॉर्डिंग सुनने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं मुझे मतलब कम मजा आता है, या जो भी एनर्जी मुझे कम गेन होती है ऐसे लगता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स को कि अपने आप मेरा सब सेट हो गया, टाइमिंग एंड ऑल। You attracted it and यही मजा है ना, that is, and of course ये एनर्जी ग्रुप एनर्जीज हम लोग प्राणिक हीलिंग में भी बोलते हैं। when हम लोग सेशन करने जाते तो 7 होते तभी करते, 7 होने से कम, मिनिमम 7 people, then the energy is equal to 100. So of course live energy is different होती है। Yes. मेरा भी ऐसे ही पॉसिबल हुआ। मैं भी इस टाइम ट्यूशन लेती हूँ और आज बारिश आ रही थी तो बच्चे आए नहीं, तो हर दिन बहुत अच्छे से मैंने सुना, महसूस किया। और आज तो रिलेशन के लिए किया तो बिल्कुल बराबर। जब भाभी को आप बोल रहे थे तो आंसू ही टपक रहे थे। हर एक से
हर एक रिश्ते से मैं क्षमा मांग रही थी और हर एक रिश्ते को क्षमा भी कर रही थी जिन्होंने हमारे लिए अच्छा मतलब हमें जिनका बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगा अपने प्रति, उनको भी मैं माफी दे रही थी बराबर। And और please ग्रेटिट्यूड continue, please continue. ये माफी का प्रोसेस है ना, एक बार में खत्म नहीं होता है, अंदर से नहीं निकलते. प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली आज वाला जो है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टकरार रोज होती है. आज आपने माफ किया, कल फिर और कुछ हुआ या कोई और बात पुरानी याद आ गई. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू. बच्चों से किसी से भी रोज होता ही है. नहीं, मैं हम लोग रात में सुन लेते हैं, एक बार इसको रात में रिपीट कर लेते हैं. इतनी सिंसियरिटी के लिए तो एकदम हाथ जोड़ के नमन करती हूँ. नहीं रियली बिल्कुल, मैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद में एक बार सोने से पहले रिपीट कर लेती हूँ. चटवानी जी, आपका हैंड रेज्ड है. I think we will also need to learn from you कि ये इतनी sincerity. नहीं, इससे सिचुएशन बहुत मतलब ब्रेक थ्रू हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप एक सेटिस्फेक्शन आता है चेहरे पर, अपने आप सेटिस्फेक्शन है. आप खुश हो ना भीतर से, that shows on your face. Thank you very much, all of you. Thank you very much. आपका हैंड रेज्ड है. You want to say something? Yes. Please. मैं ग्रुप के सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सरिता जी, शालिनी जी और विवेक जी के लिए एक जोरदार ताली हो. Thank you. We clap for us. Thank you. Big clap for everybody. आप सबकी है. विवेक जी, आपको स्पॉटलाइट करूं? नहीं. I'm enjoying. Thank you so much. मेरे को एक अनाउंसमेंट करना था कि फ्रेंड्स, अभी सरिता मैम बेसिकली वीक में एक दिन हर आपको फॉरगिवनेस या डिवाइन प्रेयर्स करवाएंगी. वो डे हमेशा भी डिक्लेयर करने वाली हैं. वीक में एटलीस्ट एक दिन तो वो ऑनलाइन आके ये ग्रुप का मोमेंटो कंटिन्यू रखेंगी. Wow, we'll wait for that day. Yay! And we can clap for that. Yes. At least we get the freedom of time and day, so they can be there as per their convenience. We'll be there for you, ma'am. I am stunned. Okay. We don't want to break the momentum. अभी इतने अच्छी फैमिली से जुड़े हैं, अब इसको अपना तोड़ना नहीं चाहते. अब इसको कंटिन्यू करते हैं चैनल जी. That is more important. और टॉपिक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं. आप चैट बॉक्स में टॉपिक या ग्रुप में टॉपिक सजेस्ट करिए. We'll prepare for the topics as per your likings. As of now, we've given almost all that we had last 2 weeks. हमने लिखा भी था, if anyone has any question answers. विवेक जी especially बोले थे कि he is ready to take the questions. So anybody has any questions with him, please come forward. कुछ भी any जो हमने manifestation पे पहले एक हफ्ता करवाया, and then 4 days of this forgiveness, which is all about manifestation of your dreams and desires. किसी का कुछ manifest नहीं हो रहा है, you have any particular questions कि मैं और क्या करूं, क्या shortage है, क्या कमी है, please you can come forward and ask your question. I'll ask something if Bhaiya is free. Yes. Please go ahead. Like at times we forgive people, ना, we do forgiveness prayer and we forgive people. But फिर again जब हम लोग उस टॉपिक में बात करते हैं, फिर रोना आता है, बहुत रोना आता है. तो ऐसे लगता है कि शायद फिर उस समय ये पॉइंट में ये रियलाइजेशन होना चाहिए क्या कि अभी भी वो नहीं निकला है पूरा. इसका आंसर मैंने अपने सेशन में दिया था 2 दिन पहले कि किसी से माफ करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि उससे हमको दर्द क्या मिला, उससे हमको लेसन क्या मिला, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे. हमको एक्सपेक्ट नहीं करना था. अगर हमको हमारा लेसन नहीं मिला, जब भी उनका टॉपिक आएगा या सिमिलर टॉपिक आएगा, हमको फिर से तकलीफ होगी. हम सही मायने में उनको माफ नहीं कर पाएंगे.
तो सबसे पहले तो वो तकलीफ हमको क्यों दे पाए, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे जिसके कारण हमको तकलीफ हुई, और नेक्स्ट टाइम हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो चीज अपने मन से निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उसको माफ करिए, तब जाके ये माफी जिंदगी भर के लिए आपके साथ समाएगी। नहीं तो जितने बार वो टॉपिक निकलेगा उतने बार आपको तकलीफ होगी। Okay. Okay. Thank you. Thank you. I'll look into it. Yeah. Anyone has any other question? Not, then we can. Sometimes actually it's if the same thing keeps repeating, it's then when the lessons, how do we know what the lesson is supposed to be situation? Yeah, इसके लिए सबसे अच्छा है why you were getting hurt from that person. You would need to take a piece of pen and paper and you need to write it down. Sometimes just thinking about it does not solve the problem. You have to physicalize on a piece of pen and paper. Once you write it down, you'll understand of your own why this pattern is repeating. Is your ego hurt? Is your heart hurt? Is your actions are hurt? Or what is the pain that action has given it to you? You were expecting some person to behave in a particular manner. He didn't. So your heart got hurt. So you have to check where I am doing wrong, how I am hurting other people in a similar manner. So that thing I need to stop. So you need to understand what kind of pain the person is giving me. Say you were expecting some gift from someone, or someone taken a loan from you and the person has to return the money to you and the person has not returned. So you need to understand what is the pattern in it. What is the reason of that pain coming to you? So then on that you analyze, and based on that you understand the pattern. Basically, the best part is instead of just thinking about it, write it on a piece of paper. And again, if you write it, you can compare your notes. Oh yeah, this was the same pattern. Oh, this was there in the last time also. So this is the thing I need to diffuse and move forward. This is the easiest way of doing it. So I remember Vivek ji, Neha ji ये समझाती थी ना, she used to say pinpoint your trigger. What is your trigger? Trigger point, right? What is your trigger point? That is what I'm saying. What is the trigger point? Yes. Either the person words or person action or person thought. What is the trigger point that is giving you that pain? And the trigger point can be the same, but it can come from different people around you because you have not learned your lesson. So the pattern might repeat for different people around it. You have to be very careful on that. Thank you. मैं विवेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? Yes, sir, please. Yes, sir, please. सर, जैसे हम लोग कहते हैं थैंक्स गॉड और ऐसा कहें थैंक्स यूनिवर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सर एक बार आप फिर से बोलेंगे, मेरे यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस था। थैंक्स गॉड कहना और थैंक्स यूनिवर्स, दिस इज देयर इज एनी डिफरेंस? देखिए, आपको अगर छोटे में समझाऊं, एक बगीचा है, बगीचे में एक पेड़ लगा है और पेड़ में फूल है, पेड़ में फल भी है, फूल भी है। एक बगीचा है, एक में 10 पेड़ हैं और उसमें फूल भी है। वैसे एक और बगीचा है, वैसे मल्टीपल बगीचे हैं, राइट? तो अनगिनत बगीचे हैं जिसमें अनगिनत पेड़ हैं, अनगिनत फल हैं। जहां गॉड बोलते हैं तो हम कई बार एक बगीचे में एक पेड़ को पूजा कर रहे होते हैं। जब हम यूनिवर्स बोल रहे होते हैं तो सारे बगीचों को एक साथ पूजा करते हैं। Thank you very much. Thank you. So well explained, sir. Sir, Vivek sir, can I also ask you one question? Yes, please. Like, see, this is something official. So when officially something has been committed, right, and when the time of giving you that commitment is not being fulfilled, right, then how do we handle it? Say you are the in charge. Say I'm saying you are the in charge of a particular organization, and Yes. someone has given you a commitment that this work I'll complete it in 10 days, 12 days, 13 days. My higher up. I'm talking about higher my up. higher up who Yes, had yes, committed higher up. something to me. Yes, higher up.
So there's a very small story here. But हाँ it's related here. एक घर में एक लेडी को ना बहुत पार्टीज थ्रो करने की आदत थी, राइट? सो जब पार्टीज में थ्रो करती थी तो घर में खाना उसकी मेड बहुत अच्छा बनाती थी, राइट? तो घर में गेस्ट आते थे और आके वो खाने को अप्रिशिएट करते थे, राइट? तो द लेडी वुड टेक ऑल द क्रेडिट टू हरसेल्फ, ये खाना मैंने बनाया, एंड शी वुड रियली फील वेरी वेरी हैप्पी, एंड सबके आगे ये प्रिटेंड करती थी कि दैट फूड वाज मेड बाय हर, राइट? एंड उसके चक्कर में उनके प्रमोशंस रुक गए थे ऑफिस में, उसके चक्कर में देयर वर अदर थिंग्स इन हर लाइफ दैट गॉट स्टक। तब बाद में जो लेडी ने पूछा किसी एनर्जी पर्सन से कि भाई मैं तो इतना अच्छा काम कर रही हूँ ऑफिस में, मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरे जूनियर को प्रमोशन मिल रहा है और माय बॉस आर नेवर हैप्पी, आई डोंट गेट द ड्यू क्रेडिट इन द ऑफिस, आई एम डूइंग द बेस्ट ऑफ द वर्क, मेरे सबऑर्डिनेट्स को जो सही काम करके मेरे को पहुंचाना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट, राइट? तब उनके साथ बैठने में पता चला कि वो क्रेडिट, दूसरे का क्रेडिट ले रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम जब पार्टी हुई तो उन्होंने अपनी मेट को बुलाया सबके सामने और बोला आज का खाना इन्होंने बनाया था, एंड बिकॉज ऑफ हर हमने सबने बहुत अच्छा खाना एंजॉय किया, बट पार्टी की होस्ट मैं हूँ, बट खाना इनका बनाया हुआ है। एंड नेक्स्ट डे ही उनका प्रमोशन होने लग गया, एंड उसके बाद उनको ड्यू क्रेडिट जो था, ड्यू क्रेडिट मिलने लग गया। तो इट्स अ लेसन, अ पेन, जिससे किसी को टाइम पे नहीं मिल रहा है, सीनियर अथॉरिटी पे हैं, लेकिन किस लिए नहीं मिल रहा है? दैट इज अ पेन दैट इज कमिंग टू यू। पेन कैन कम टू यू फॉर अ डिफरेंट रीजन, फ्रॉम डिफरेंट रीजंस। आपने किसी का क्रेडिट चेक करो कि कहीं किसी का क्रेडिट क्लोज नहीं किया, किसी को आपने कमिटमेंट किया, अपने मेट को बोला मैं कल पैसा दे दूंगी, कल शाम को आ जाना, आप 2 दिन बाद पेमेंट ही नहीं दे रहे हो उसका। छोटी छोटी बात, वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने अपने बच्चे को बोल दिया कि कल शाम को भी आपको खिलौने दिला के लाऊंगी, मेरे को आपको सैलरी मिलेगी, आपने कल भी नहीं दिया, बच्चा भी तकलीफ पाया। सो डोंट कमिट, दैट इज द वर्ड ऑफ टाइम, राइट? खुद को भी अपने आप को चेक करना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर। जब आप सीनियर हो जाते हो, ये छोटी छोटी चीज अपने को बहुत ज्यादा और बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करती है, बिकॉज गॉड वांट्स अस टू बी परफेक्ट, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेनी पीपल अंडर अस। छोटे बच्चे होते हैं, डायपर में टॉयलेट कर दो, आप उसको चेंज कर देते हो, यू डोंट से एनीथिंग, लेकिन जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, वो पेमेंट अपने पेंट्स में टॉयलेट कर देगा ना, तो आप उससे हल्ला करोगे, झगड़ा करोगे। सेम वे कर्मा लॉर्ड्स, आप नहीं समझ रहे हो तब तक तो प्यार से हैं, जब समझने लग के आप गलती करते हो, then they will teach you a lesson. The lesson has to be learned very fast. But I know sir, to be very honest, like till date, I give credit to everybody. I don't take the credit on myself. I'm not saying That a credit one. I'm not the word. Credit is just the example. Okay. तो आप आपको चेक करो, अपनी सुबह से लेके रात तक के टाइम में आप क्या कर रहे हो, 2-3 दिन का रूटीन लगाओ। सुबह गाड़ी से आ रहे हो, ड्राइवर टाइम पे आ रहा है क्या, मैं उसको जबरदस्ती वेट तो नहीं करा रही हूँ, या खाने के टाइम पे किसी को वेट नहीं करा रही हूँ, माय हस्बैंड इज वेटिंग तो मैं उनको टाइम पे। तो जस्ट चेक आउट योर डे रूटीन, कहीं से छोटी सी चीज आपको पकड़ में आएगी जिसके कारण ये आपके साथ हो रहा है। आप खुद को एनालाइज करो, पूरा रूटीन अपना लिखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। फिर अगर नहीं समझ में आए तो ये फॉरगिवनेस वाली चीज है। मैंने किसी को अगर गलती से किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो आई सीक फॉरगिवनेस, मैं आज से टाइम टेबल मेंटेन करूंगी। यू कैन जस्ट एनालाइज ऑन द फॉरगिवनेस प्रेयर आल्सो, दैट कैन आल्सो बी डन। I would like to share here that पिछले 2 दिन से ज्यादा हो रहा था, but today things have changed drastically. It has become very very positive. Yeah. वो फॉरगिवनेस, फिर आप 2 दिन का जो फॉरगिवनेस था उसको चेक करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग फॉर 7 days, दोनों सेशंस को 7 दिन तक। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.
Thank you for your questions. We all get so many more answers because of your question. यही रेट में गया ना पर आपका एक क्वेश्चन इतने लोगों को फायदा पहुंचाएगा. All who are on Facebook will be listening on Facebook. So I will just take a minute. Some people are asking for the WhatsApp link to our group. I'm just posting that. अगर गिनती करो तो Yeah, that's the link to our WhatsApp group. If anybody wants to join our WhatsApp group, हम लोग के WhatsApp group में only positive, especially in the morning, people share positive messages. Nothing else comes there. And the links to our sessions will be available there. And of course, if anyone has any questions, that is also posted there. and prayers, any request, any prayers for healing or any difficulty, you can post it there. I hope you've copied the link, then we can end the session with a prayer for all these sessions. Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the Supreme Beings, all the Divine Beings, all our higher souls, of all of us who attended any of these sessions, we thank you with deep, deep gratitude for all the lessons that have come to us. Thank you that you thought we were old enough as souls to accept these lessons, to understand these lessons. Thank you. Thank you to each and every soul present, because it is the energy of every soul that has brought the lessons to us. We are just the medium. We request you to keep the learnings to us, that we keep revising the learnings and keep practicing them. We are all just souls. Just imagine you are just one tiny light, and all of us are connected to each other through God. We are all children of God. Connect yourself also to Mother Earth. We are getting the learnings, but we remain connected and grounded to Mother Earth. These learnings are making us more and more humble, more and more tolerant, more and more compassionate. Thank you. Thank you. Thank you. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So much. Thank you so much. From the bottom of our hearts, we thank each and every participant for participating and making this entire session so successful. So grateful to each one of you. Thank you to all three of you. To this. Words are very short to say. Thank you is a very small word, but all is it we can say is thank you. And Vivek ji, आपने जो बोला कि the difference between God and universe, really we are very confused that हम भगवान को बोले या universe को बोले, but you cleared the difference so easily that भगवान एक बाग का एक छोटा सा tree है and universe is the whole garden, entire universe. So today that is also cleared. Thank you so much, Vivek ji.
That teachings comes from my guru, Master Chokok Sri for Pranic Healing. He has explained it very well. So that is it. I'm Yeah. so grateful to my guru. So that's what we have so many gods. We are really confused कि किसको पूछे. आजकल ये books, magic books पढ़ने के बाद लगता है नहीं, universe, thank you universe निकलता है मुझसे. Respect everyone, but अभी आजकल मुझसे से thank you universe निकलता है. फिर उसमें भी मैं I'll just add one line. There is Yes. universe. There is a group of universe, and then again there is a group of universe, multi-universes. So it's all the same. So you can pray to universe. That is the universe that we live in this physical body. I always look at the different gods at different ministries, na? Wealth ministry, Lakshmi ji hai. Right. गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है. वही all different ministries. Right. Both the stories were awesome. Both the stories. Actually, अब कभी भूलेंगे नहीं. बिल्कुल नहीं भूलेंगे. Thank you so much, Vivek sir. Thank you. Thank you. Thank you. Vivek. Waiting for more sessions. All yes, Sure. yes. Ma'am, Sarita ma'am, the session which you will be taking, if it can be Yes. on a holiday. All any sessions will be with all three of us. So yes, let us yes. talk it. This was Done. we will Please. announce it in the group. Thank you so much. Thank you. So Thank you so much. thank you so much.